like there are two things, right? You visit some place and then you explore some places. Mere visiting is not exploring. ठीक है, बहुत हाँ, we go to so many places, like you go to Qutub Minar, you have visited Qutub Minar, that does not mean you have explored it. Qutub Minar, right, correct. ठीक है, तो these are two aspects. So I have visited a lot of places, but there are only few which I have explored in that sense कि क्या है कैसे है. And when you are talking about an experience is one of the most profound experiences I have had was in Rishikesh. ठीक है, I might have told you earlier. Rishikesh is the Rishikesh, prime yeah, location Rishikesh, for everyone to have that the experience. The experience, Yeah, and it actually when most of the time when people are traveling to Rishikesh, कुछ ना कुछ वैसा ना दिमाग में चल रहा होता है. Like you would either go higher or you would either go to Himachal or somewhere else. Rishikesh somehow is a welcoming हाँ point. कि ना कुछ something कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तभी आप ऋषिकेश जाते हो. ऋषिकेश जाते हो. Otherwise ऋषिकेश हाँ, that is somewhere that place is some place which some places are kind of which expands your consciousness. तो I find ऋषिकेश थोड़ा वैसा है because of again it has so many वैसे institutions जो योगा और अध्यात्म और ये सब से जुड़े हुए हैं. And there are so many practitioners also there in and around. So the vibe is also very calming but we didn't. The experience I had was not when I went there with this motive. We went there just for chilled out weekend. Okay. And I went with my cousin sister and a friend of hers. So we just went there and the camp was on the other side of the road. So the vehicle had to be parked on the road. तो हमने वहीं पार्क कर दिया and when we started going downhill, तो कैंप वाले बंदे ने अपना एक he sent some guy with their वो होता है ना टट्टू या जो सामान लेके जाते हैं, वो हर जगह उनका अलग टर्म होता है. So he sent that. तो हमने अपना सारा सामान तो दे दिया उसको, पर उतरना ही अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था बिकॉज इट वाज थोड़े दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था एंड द वेदर वाज आल्सो कि थोड़े टाइम पहले बारिश हुई थी एंड देन सडनली सन वाज आल्सो लाइक शाइनिंग. तो फिर ना वो पूरा लूज हो गया था पूरा मटेरियल. तो एज सुन एज यू आर पुटिंग योर फीट ऑन एनीथिंग हाँ इट वुड जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग एंड यू विल बी स्किडिंग. तो कुछ ना कुछ होल्ड करके सो यू हैव टू be very careful of any step you take, any move you make. So वही अपने में लग रहा था कि यार ये मतलब the start was so dangerous in a sense कि we were like कि कहीं और चले जाना चाहिए. But then वो शुरुआत में थोड़ा तो एनर्जी भी वो बहुत हाई थी, तो हमने किसी तरह हम नीचे पहुंच गए. And then there was a bridge. That bridge is a very somehow that bridge made me feel going from a different world to another world, from one world to another. It was a bridge which connected that two things because एक bridge के एक side is all city and full road. Is it the bridge that you are talking about? No, the very lengthy one which connects one hill to the other. There are similar bridges इन उत्तराखंड जैसे लक्ष्मण झूला उस टाइप के ना बहुत सारे ब्रिजेस हैं. तो दैट वाज वन सच ब्रिज. पर उसके दूसरे साइड जाने पे ना यू हैड दैट होल आइसोलेशन वाला फीलिंग कि कोई नहीं दिख रहा है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है एंड यू फेल्ट लाइक कि हाँ थोड़ा वो कट ऑफ जिसके लिए जाता है ना आदमी कि नॉर्मल कट ऑफ हाँ कट ऑफ हो चुका है. तो हम लोग थोड़ा आगे गए एंड देन दिस गाय वाज लाइक कि अचानक से ना रास्ता खत्म हो गया. अच्छा. हाँ ऐसा पहाड़ है, इस तरफ हम खड़े हैं, इस तरफ से रास्ता कंटिन्यू है बट ये पहाड़ पे रास्ता नहीं है. एंड वी आर लाइक अब कैसे जाएं. तो हम लोग ऊपर देख रहे थे कि ऊपर चढ़ के फिर ऐसे जाना होगा कुछ. देन ही वाज लाइक नहीं यहाँ कल ही लैंडस्लाइड हुआ है.
कले और हम लोग सब कोई ऐसे पीछे एक दूसरे को देख रहे हैं कि आगे जाना भी है या नहीं। तो लाइक आफ्टर डिनर हमने उसको बोला कि चलते हैं। तो उस टाइम फिर हम जंगल वाले एरिया में पहुंचे। जंगल वाले एरिया में उसने बोला कि अगर आपको लेपर्ड दिखता है तो आपको डरने का नहीं है। लाइक डरने का नहीं है भैया। फिर बोले बस लाइट ना उसके आंखों में दिखाना है। अच्छा ठीक है। एंड वी वर लाइक चलो ठीक है। हम तो वही सोच रहे थे कि अगर वो सामने आएगा तो फिर लाइट दिखाने की भी हालत रहेगी या नहीं। अगर वो कुछ नहीं करेगा, वो आपके पास भी आ जाए ना, बस आप उसके आंख में लाइट दिखाते। एंड जो मेरी कजन थी दी, उन्होंने वो पूछ रही हैं कि उसको वैसे हुर हुर ये सब नहीं करना। They was like नहीं आप लोग वो सब कुछ मत करना, उससे भागने वाला थोड़ा ना, बस उसको ब्लाइंड, मेक हिम ब्लाइंड। अच्छा। तो ये लाइक चलो ये भी एक नई चीज पता चली। और वी वर जस्ट काउंटिंग कि वो दिखे ही ना। तो फिर हमने उससे पूछना शुरू किया, हम फिर चलने लगे। एंड वी वर मेकिंग इट कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा तो देख लेंगे। हाँ। फिर जा रहे हैं, अचानक से ऐसा फील हुआ पीछे से कोई आ रहा है। अच्छा। हाँ, पीछे से कोई आ रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं। एंड वो ना एक अननर्विंग साइलेंस होता है ना, इट वाज समथिंग लाइक दैट कि एकदम सिटी में रह के ना उतने ज्यादा शांत वातावरण का आदत होता ही नहीं है। एंड देयर वाज नो साउंड of any human settlement, any movement or anything, only dead silence। हाँ, dead silence। कुछ एक आध कीड़ा वीड़ा भी होगा तो वो होगा, otherwise it was very silent। तो जो भी movement हो रहा था ना, कुछ भी, we could feel it and we were feeling कि somebody or something is coming पीछे से ऐसे। और अचानक से एक बंदा निकल के आता है out of nowhere। हाँ, out of nowhere and we were like ये कौन है? तो इसने लेपर्ड के बारे में तो बोला था, पर कोई आदमी निकल के आता है। अब इसकी आंख में लाइट। फिर पता चला कि वो अब्बल का ही फ्रेंड था। अच्छा। एंड दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट कि ये बंदा इतना चुपके से आ रहा था कि वी स्टार्टेड फीलिंग शेडी अबाउट हिम कि ये बंदा ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इसने भी नहीं बताया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है और ये चुपके से आ रहा है। तो फिर वो ना वैसी बातें भी कर रहा है फुल रास्ते में। पहले तो हमें बताया गया कि हाँ बस 500 मीटर 1 किलोमीटर का रास्ता है। हमें लगा 10-15 मिनट मोर देन इनफ है। हम जा रहे हैं 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गए। हम बोल रहे कि यार 1 ही किलोमीटर है, पक्का हो तो बोला हाँ पहाड़ों में ऐसा ही लगता है, दूर ज़्यादा लगता है, पर है 1 ही किलोमीटर। तो बोला ठीक है। फिर हम चल रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी कुछ नहीं है कि फिर अब वो जो दूसरा बंदा आया वो शुरू कर दिया बात कि महाकाल। ठीक है कि जब मौत आती है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हम क्यों बात कर रहे हैं भाई, हम पहले ही डरे हुए हैं। वो पूरे रास्ते बोल रहा है, वो उधर एक खाई में, वो देख रहा हूँ वहां से कल ही एक गाड़ी गिरी है, 3 बंदे थे, तीनों नहीं बचे, हम ही उठा के ले गए। हमें लग रहा है चाह क्या रहा है यार, तू चाह क्या रहा है, एक तो तू पहले ही डरा के आया है, तू चाह क्या रहा है। फिर हम पहुंचे, फिर चल रहे उसकी कहानी सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं। हम धीरे धीरे चलने लगे उस चक्कर में कि भाई तू आगे जा, अपनी कहानी सुना, हम पीछे ही रहेंगे। फिर तब ऐसे चलते चलते आया हुआ 40 मिनट में हम लोग पहुंचे। एंड वी वर श्योर कि वो 1 किलोमीटर तो नहीं था। अच्छा। वो जैसे होता है ना लूर करना बच्चों को कि चलो अरे बस 100 मीटर है, 100 मीटर, वैसे करके वो हमें बहुत काफी, मेरे को लगता है 2-2.5 किलोमीटर गए होंगे हम लोग। बिकॉज इट वॉज 1 हिल, देन द अदर हिल, इट वॉज ऑन द 3rd हिल। तो वो काफी दूर था। एंड हम लोग पहले से हमारा कैंप एक रिवर बीच साइड था। तो वो बोला कि हम आपको बड़े बीच पे ले जाएंगे, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ऐसा वैसा है। ठीक है। तो वहां भी जब नीचे जाने लगे ना तो फिर से वैसा स्किडी रास्ता। एंड दैट वाज वेरी लाइक दैट वाज नॉट अ फिक्स
एक कोई पाथ है, जो लोग जाते हैं तो एक पाथ बन जाता है अपने आप. दैट वाज नो सच थिंग. वो बस ऐसा ही था कि बस यहाँ से उतरना है. अच्छा. हाँ, तो पेड़ वेड़ पकड़ के किसी तरह उतर रहे हैं और अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है. बस उतना ही दूर दिख रहा है जितनी दूर छोटा हल्का कोई टॉर्च उसने दिया था वो यहीं तक दिख रहा है. हाँ, मतलब 1 हैंड डिस्टेंस तक दिख रहा है बस. तो उतरने टाइम उतना कुछ फील नहीं हुआ. हम चले गए किसी तरीके से, वैसे ही उतर के तो पहुंचे बीच पे. बीच तो शानदार था, उसमें कोई वो नहीं है. फिर उन्होंने कुछ ऐसे बीच से खोज के एक बॉनफायर भी लगा दिया. फिर हम लोग वहां बैठे. फिर उस बंदे ने महाकाल की बात शुरू कर दी. वापस. फिर हम लोग भी वो हो गए थे कि चलो अब तो आ गए, अब नाउ वी आर सेफ. तो वी आर आल्सो इंटरैक्टिंग. फिर दैट द अदर गाय ही टुक आउट हिज चिलम. अच्छा. हाँ, एंड ही स्टार्टेड स्मोकिंग. तो ना थोड़ा हम लोग भी पैसिव, वी वर ऑल्सो हैविंग दैट पैसिव अफेक्ट कि वी वर ऑल्सो फीलिंग दैट थोड़ा सा. सो फिर ना बहुत ऐसा हमने काफ़ी टाइम बिताया. तो वो हुआ, वी वर टॉकिंग ऑल्सो पर्सनल थिंग्स अबाउट अब्बल एंड एवरीवन, जो सब अपना कुछ बात कर रहे थे. वी वर सिंगिंग. उसके बाद वी वर लाइक कि अब चलते हैं, क्योंकि ठंड पड़ने लगी थी. तो फिर हमने उस बीच पे तो हमने बहुत एंजॉय किया. मस्त लेटे, बढ़िया आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, एकदम क्लियर स्काई, और नदी ऐसे बह रहा है कल फुल. दैट इज अ मोमेंट टू रिमेम्बर लाइफ टाइम वाला. जब वापस आने लगे हमने डिसाइड किया कि चलते हैं वापस. देन दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ द गाइड्स. अच्छा. कि इनको उस रास्ते से ले जाते हैं, नहीं इनको उस रास्ते से ले जाते हैं. और हम लोगों को कौन सा रास्ता पता भाई, हमें तो कुछ नहीं बताया. तो उन्होंने डिसाइड किया कि आपको एक केव से लेके चलते हैं. अब आप एडवेंचर ही करने आया था, आपको कराते हैं एडवेंचर.